So in this type 2, the function is expected to be either sine of ax plus b or cos of ax plus b. So what happens is, when you are finding out yp, particular integral, then it is 1 upon phi of d sine of ax plus b, which is equal to, which can be expressed in terms of as a function of d square. So we express d square as a function of d square, and wherever there is d square we replace it by minus a square. That is the rule. The only condition is that the denominator should not be equal to 0. If it is equal to 0, then again we have to deal the case by case failure method. Case failure method is exactly the same as that we have seen in the type 1, means the derivative method. In type 3, we have hyperbolic sine ax plus b and cos hyperbolic ax plus b. Here what happens is, we have to replace d square by plus a square in the auxiliary equation or in the denominator. So we express this as a function of d square and we replace it by phi of phi of d will be psi of d square, and that will be replaced by psi of a square, and rest everything it remains same. Obviously denominator should not be equal to 0, else it will become case of failure, and you will have to deal this by again the same method. Which method? The derivative method. So look at the concept over here in this question. In this question, finding yc is a very trivial thing. So I have done it already. So you can just go and read it. तो यहाँ पे देखो हमने yc कैसे निकाला, इसके रूट्स निकालने होंगे हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन के। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए हमने क्या किया, डी स्क्वायर को टी पुट कर दिया। तो हमने टी के लिए सॉल्व कर लिया, टी इक्वल टू -1 एंड -1 आ गया। तो टी के लिए रिप्लेस कर दिया, टी वॉज डी स्क्वायर। तो वो रिप्लेस करने के बाद में हमें ये वैल्यू आ गई। तो हमने डी की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली। तो हमारे जो रूट्स आ गए वो 4 रूट्स आए हैं, क्योंकि इस डिफरेंशियल इसका इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का डिग्री क्या था, 4 था। तो अब ये 4 आ गए तो हमारे पास 4 रूट्स आ गए हैं। अगर इसको हम इमेजिनरी और रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाले तो रियल पार्ट अल्फा दैट इज 0 एंड इमेजिनरी पार्ट इज बीटा विच इज 1 आता है। तो ये जो रूट्स है ये हमारे रिपीटेड भी हैं, हमारे रूट्स जो हैं वो रिपीटेड भी हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे करने के लिए हमें रिपीटेड वाली टेक्निक यूज करने के लिए हमें x मल्टीप्लाई करना होगा कांस्टेंट में। तो लेट अस राइट दैट थिंग ओवर हियर। So therefore yc is equal to c1 e to the power 0x in the bracket c1 plus c2x cos beta x, cos beta x, beta 1 है, plus c3 plus c4x sin beta x, बीटा की वैल्यू 1 है, that is equal to c1 plus c2x cos beta x plus c3 plus c4x sin beta x. That is your statement number 1. 50% of your solution is found out. अभी अब सिर्फ 50% बच गया है, तो ये हमारा निकल गया CF. ओके, तो YP निकालना है हमें, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर फंक्शन ऑन द राइट हैंड साइड। वो वाली केस अपने को लगानी होती है, सो वी विल यूज दैट केस। सो फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल वी फाइंड आउट YP. YP is equal to 1 upon phi of D acting on cos x. ठीक है, so that is equal to, अब यहाँ क्या करेंगे, d square has to be replaced by, d square has to be replaced by what, minus a square. ये हमारा टेक्निक है
इसका रिप्लेसमेंट है डी स्क्वायर रिप्लेस्ड बाय माइनस ए स्क्वायर। केस क्या था, कॉस ए एक्स प्लस बी। इस फॉर्म में अगर है हमारा तो ए क्या होगा, एक्स का कोएफिशिएंट है। हियर value of a is equal to 1. So what I will do is I will complete it. This is equal to 1 upon, this is a function d square square है ये, so d square square it has to be written 2d square plus 1 cos x as it is. This is equal to 1 upon minus 1 square plus 2 d square replaced by minus 1 plus 1 cos x. So what happens is, oh no, this is case of failure. तो ये हमारा आ गया केस फेल। तो केस फेल हो गया, हमने रफ में निकाल के देख लिया तो ये तो केस फेल हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर जो है हमारा 0 आ गया। तो हमें क्या करना होगा, केस फेल हो गया तो ये सब चीजें बेकार हो गई, हमें वापस से जाना होगा इनिशियल स्टेप में। तो हमें क्या करना होगा, x मल्टीप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे सेम टेक्निक से जाएंगे, डिवाइडेड बाय 4 डी क्यूब प्लस 4d प्लस 0, ये आ गया हमारा डिनोमिनेटर, 1 आ गया, बाकी सारी चीजें एज इट इज। डेरिवेटिव लेना है और x मल्टीप्लाई करना है टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ अगेन चेक योर केस। अब यहाँ पे हमें वापस से डालना होगा डी स्क्वायर बाय रिप्लेस्ड बाय माइनस 1। चेक कर लो साइड में क्या आ रहा है। तो हम डिनोमिनेटर जो है उसको कैसे लिख सकते हैं, 4d स्क्वायर और d एक्सप्रेस कर लो 4d। अब जहां पर भी डी स्क्वायर है वहां पर हमें डालना होगा माइनस 1, ओनली डी स्क्वायर टू बी रिप्लेस बाय माइनस 1। डी को आपको हाथ नहीं लगाना है, दैट विल बी एज इट इज। तो 4 माइनस 1 डी प्लस 4d। अरे ये क्या हो गया, ये फिर 0 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि डी स्क्वायर की वैल्यू देखो यहाँ पर अपनी माइनस 1 2 बार आई है। ठीक है, तो यहाँ से हिंट लेना है कि अपनी केस जो है वो 2 बार फेल होगी। तो ये केस तो हमारी फेल हो गई। तो हमें वापस से डेरिवेटिव और एक्स मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट या वो ट्रिक यूज करना होगा। तो मल्टीप्लाइंग एन एक्स अगेन एंड टेकिंग अ डेरिवेटिव वन मोर टाइम्स, इट विल बी 12d स्क्वायर प्लस 4 cos x एज इट इज। अब फेल नहीं होगा क्योंकि 2 बार हो चुका फेल हमारा केस। तो अगेन हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो है कि हमें डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है माइनस 1 से। चेक दिस, so it is x square 1 upon minus 12 plus 4 into cos x। ये कितना आया, I think so 8 आया, minus 8, so this is minus x square by 8 cos x। This is your yp, finally you get this as your yp। so this is your number 2। फाइनली आपको 1 plus 2 लिखना है ताकि आपका सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाए।